السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو عید مبارک۔ تین دن عید کے مصروفیت کی وجہ سے آپ کے سامنے نہیں آئے، پروگرام نہیں کر سکے۔ آج عید کا تیسرا دن ہے، ملک میں عام ایشوز پر بات چیت کریں گے۔ پروگرام میں آگے چلتے ہوئے پہلے آپ کو گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو ہے آپ تک مزید خبریں اور مزید تبصرے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی حمایت کا بہت شکریہ۔ آغاز یہ ہے کہ آج دو بڑی خبریں ہیں۔ وہ دو بڑی کیا ہیں؟ ایک تو 28 ترمیم کے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ ساری دم توڑ گئی۔ صدر نے جو ہے اس معاملہ کہا جا رہا ہے کہ ایک صدر آصف علی زرداری نے ایک بار پھر سندھی میں پاک آئے کہ مل مار دی۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بحث کریں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو معاملہ ہے کہ 5 تاریخ کو بجٹ اجلاس طلب کر دیا ہے، صدر نے منظوری دے دی ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کا۔ 5 تاریخ کو 5 بجے اجلاس طلب کر دیا ہے۔ ایک یہ امپارٹنٹ ایشو ہے۔ اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدہ دستخط ہو چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اپنے اتحادیوں کو معاہدہ بھیج دیا ہے اور معاہدے پر ابھی تک امریکہ کی طرف سے ایران کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آغاز چلتے ہیں۔ ملک میں کئی روز سے نئے معاملات آ رہے تھے۔ 27 ترمیم کے بعد 28 ترمیم کی چرچے ہو رہے تھے، باتیں چل رہی تھی۔ اسلام آباد میں آئے دن نئی باتیں چل رہی تھی، ہم جس سے لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے کہ 28 ترمیم کی لانے کے لیے حکومت کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ وہ بجٹ جو 28 ترمیم ہے وہ حکومت بجٹ سے پہلے لائے گی، اور اس کا حوالہ کیونکہ سینئر جرنلسٹ ہیں رؤف کلاسا صاحب، اس کے بعد نجم سیٹھی نے بھی کیا تھا کہ بجٹ 28 ترمیم آ رہی ہے اور حکومت پہلے یہ کرنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے بجٹ میں 28 ترمیم میں مختلف معاملات تھے، نفسی معاملات تھا، پانی کا ایشوز تھا، اور صوبائی جو محکمے ہیں 3-4 صحت ہے، تعلیم ہے، معدنی وسیل ہے، بہبود آبادی ہے، ان کو وفاق کے حوالے کرنا چاہتا کا معاملہ تھا، کیونکہ وفاق چاہتا ہے کہ صوبائی کمزور ہیں اور وفاق مضبوط ہو۔ وفاق کے حوالے سے وفاق کو خسارہ لائق ہے، کیونکہ وہ تنخواہ دے کر وفاق کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو یہ بحث ملک میں توڑ پھوڑ چل رہی تھی مسلسل۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ پیپل پارٹی ان پر آمادہ نہیں ہو رہی۔ مسلسل جو بیانات آ رہے تھے مسلم لیگ نون کے اراکین کے، وزیروں کے، صلاح کاروں کے، تو وہ اس بات کو ایگری کر رہے تھے کہ یہ معاملہ زیر غور ہے، مگر تمام تر کوششوں کے باوجود پیپل پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری، خاص کر کے آصف علی زرداری، وہاں پر دیوار کھڑے کر دی، اور ان 27 ترمیم اور کے بعد 28 ترمیم لانے کے حوالے سے جو باتیں تھیں اب وہ دم توڑ گئی ہیں۔ اس میں خاص کر کے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ صوبائی خود مختاری کے معاملات ہیں، جس میں صوبوں کی تقسیم کا معاملہ تھا، تو وہ پیپل پارٹی نہیں چاہتی کہ صوبوں میں سندھ صوبے کی تقسیم ہو۔ تاہم اسی کے حوالے سے ہم آپ کو شفقت صاحب ہیں جو تجزیہ نگار ہیں لاہور کے، انہوں نے بھی اس کو کوٹ کرتے ہوئے ہم بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف بھی صوبوں کو توڑنے کے حق میں نہیں، مریم نواز بھی اس کے حق میں نہیں تھی۔ تو تمام تر باتوں کے بعد جو ہے 28 ترمیم کی جو باتیں چل رہی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ ختم کیسے ہو گئی؟ کیونکہ آصف علی زرداری عید کی چھٹیاں منانے نواب شاہ آئے تھے۔ وہ گزشتہ دنوں 3 دن وہاں نواب شاہ میں تھے۔ انہوں نے نواب شاہ کے ساتھ مورو میں جو وزیر داخلہ سندھ ہیں اس کی ضیاء حسین لانجار صاحب کی دعوت پر
वहाँ आए और उन्होंने कारकुनों से खिताब किया। वहाँ उसकी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसमें कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट और पीपल पार्टी और हुकूमत एक पेज पर है और साथ ही चल रहे हैं और साथ चलेंगे, और क्योंकि मुल्क के जो दरपेश मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इन मामलात पर जो है तीनों दो सियासी पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट एक मुत्तफ़िका है। और क्योंकि ये तीनों जंजीर हैं, अगर इसमें कोई एक पीछे हो जाता है तो तमाम तर मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने वहाँ पर खिताब किया और उन्होंने मुल्क की मईशत और मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसान हारियों की खुशहाली के लिए हम काम कर रहे हैं, हम ऐसे तारीखी काम करेंगे कि दुनिया याद करेगी, लोग हमें याद करेंगे। आसिफ अली जरदारी जो स्टेटमेंट जो वीडियो बयान जारी हुआ तकरीर का हुआ था खुलासा, उसमें मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा कि हम जब हमें जो जुल्फ़िकार भुट्टो को शहीद किया गया और मीर मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद किया, शाहनवाज को भुट्टो को शहीद किया गया, बीबी साहबा को भी शहीद किया गया, तो हमने मुल्क में जो है पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और हुकूमत के साथ मामलात उसको पीछे करके आगे चले और मुल्क की खातिर और अपने आप की खातिर हम आगे चले और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा। तो अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो खुफिया बातें जो इस तकरीर मोहरों में खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कही है, वो वहाँ के सोर्सेज बता रहे हैं। उस कुछ तजिया निगार इमदाद सुमरो लाहौर के हैं, वो भी बता रहे हैं इस बार में। उनके सोर्सेज कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से क्यों झगड़ा करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमें मुल्क को आगे लेके चलना है। और उन्होंने कहा कि हम ये जो लोग कहते हैं कि ऐसा यूं हो जाएगा तमाम तर मामलात इत्तफाक राय से हो रहे हैं और 73 के आइन के मुताबिक हम चल रहे हैं। 73 के आइन में क्या क्या था, वो कौन से मसाइल थे, तो वो बातें उन्होंने की हैं और भी खुफिया बातें की हैं। उन्होंने एक तो वो जो ये तजिया निगार ये लोग जो कह रहे थे कि 27 तरमीम के बाद 28 तरमीम आ रही है, तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास 5 जून को तलब कर दिया है कि दिन में 1 घंटे के बाद पहले कौमी असम्बली का इजलास होगा, फिर सेनेट का इजलास होगा। तो ये जो क्यासिराइयाँ चल रही थी इसके 28 तरमीम हुकूमत ला रही है और 28 तरमीम बजट से पहले आएगी, तो वो क्यासिराइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और एक तीर से 2 शिकार किए हैं आसिफ अली जरदारी ने। जैसे मैंने कहा कि सिंधी में मल कहते हैं, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिला दिया है ऑन द फ्लोर। अब कुछ दिनों पहले किसी प्रोग्राम में जो है सैयद नासिर हुसैन शाह सूबाई वजीर हैं, उन्होंने कहा कि हम वफाक को दिफाई बजट में मदद करना चाहते हैं मगर लिखत में नहीं करेंगे, क्योंकि NFC को मामले को छेड़े बगैर हम वफाक को मदद करने के लिए तैयार है। तो इस्टेब्लिश और पाकिस्तान पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून ने बीच का रास्ता अख्तियार कर दिया है और पीपल पार्टी ने अब आमादा हो गई है कि वो NFC को छेड़े बगैर 28 तरमीम लाए बगैर जो वफाक की कुछ ज़रूरतें हैं वो कुछ फंड्स सूबा सिंध समेत सूबे मुख्तलिफ जो हैं वो देने के लिए वफाक को तैयार हो गए हैं। तो ये है, एक तो इस्टेब्लिशमेंट से मामला ठीक किए हैं आसिफ जरदारी ने। दूसरा मामला ये है कि NFC वाला बड़ा मसला था उसको भी हल कर दिया है। तो एक तीर से 2 शिकार ये हुए आसिफ अली जरदारी ने। इसके आपको याद होगा कि पहले 26 तरमीम और 27 तरमीम जब आई थी तो आपको याद होगा असेंबली के फ्लोर पर बिलावल भुट्टो ने कहा था कि 27 तरमीम नहीं लाई जाएगी, उनकी हिमायत नहीं करेंगे। और उन्होंने NFC मामला के हवाले से खुला चैलेंज किया था असेंबली के फ्लोर पर
वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, तो किसी के बाप की ज़रूरत नहीं कि वो 18 तरमीम को ख़त्म कर दे। आपको याद होगा, तो इसी तरह अब पीपल पार्टी कुछ न कुछ अपने बैकग्राउंड पर इस्टेब्लिशमेंट को ये मजबूर कर दिया है कि वो अपने कुछ मामला पीछे करे। ये ईरान अमेरिका के हवाले से गुज़श्ता 3 दिन जो ईद के दिन थे, ईरान पर अमेरिका ने एक बार फिर जनूबी ईरान पर हमले किए थे और वहाँ पर मिसाइल डाले थे। कुछ को ईरान ने नाकाम बना दिया, क्योंकि ये जदीद निज़ाम के ड्रोन थे अमेरिका के, जिसको भी ईरान ने उसका ताश नाश कर दिया और बड़े नुकसान से बचा दिया ईरान को। तो ईरान की जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत पर अमेरिकी अड्डे पर हमला किया। कुवैत अक़वाम का कहना है कि उसको उन्होंने नाकारा बना दिया है। ताम ये पिछले 2-3 दिन में ये बड़ी डेवलपमेंट हुई थी और ईरान अमेरिका जंग के करीब दोबारा आ गए थे, मगर जो बातचीत का सिलसिला था वो नहीं रुक सका। मुख्तलिफ ममालिक, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक इस कोशिश में थे कि ईरान अमेरिका माहिदा हो जाए। आर्मी चीफ पिछले दिनों ईरान गए थे और अब ये खबर आ रही है कि ईरान अमेरिका के दरमियान बरतानी अखबार दावा कर रहा है कि माहिदा तय पा गया है। अभी तक उन्होंने दावा किया है कि 14 से 12 नुकातों पर जो है अमेरिका हम ने ईरान के मुतालबे तस्लीम कर लिए हैं। उन 12 नुकातों में ईरान के आब हुर्मुज़ को खोलने और उसका मुआसरा ख़त्म करने और 25 अरब रुपए डॉलर्स की जो मनजंद अकाउंट है वो भी खोलने की शराइत शामिल है। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह माहिदा अपने इत्तेहादी इसराइल को, नेतन्याहू को भेजा गया है और दीगर ममालिक को उसको देखने के लिए फिर हतमी तौर पे कुछ दिनों में या आइंदा कुछ दिनों में ऐलान हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि चीन की तरफ से कहा गया है कि अब जो हतमी माहिदा हो वो अक़वाम मुत्तहिदा में हो वहाँ पर चार्टर ऑफ डिमांड्स वहाँ पर हो। तो ये बड़ी डेवलपमेंट, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी तक फाइनल मुआहिदा नहीं हुआ ईरान के साथ। उन्होंने कहा कि कुछ बातों पर एग्रीमेंट हो गया है और कुछ बातें अभी बाकी हैं। तो ये डेवलपमेंट है। वहाँ से ईरान ने ईरान के बाद अरब ओमान को नक्शे से मिटाने की धमकी दी है अमेरिका ने, जिसकी ईरान ने सख्त मजम्मत की है कि एक खुद मुख्तियार रियासत और अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा मुल्क को उसको नाम निशान मिटाने की जो अमेरिका की ये ख्वाब है ये कभी पूरा नहीं होगा, उसकी मजम्मत की है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अलावा और भी डेवलपमेंट हैं जो आने वाले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।